السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پتی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ تمام کی کوششوں سے تلنگانہ کو ترقی کی راہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ موسیٰ ندی کی صفائی، میٹرو کی توسیع حکومت کے اہم مقاصد۔ عالمی سطح پر عثمانیہ یونیورسٹی کو ترقی دی جائے گی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ جاریہ ماہ کی 8 اور 9 دسمبر کو فیوچر سٹی میں ہونے والی تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے انتظامات کے لیے سرگرمیاں جاری۔ ریاستی وزیر سریدر بابو نے کیا سمٹ کے مقام کا معائنہ، وزیر اعلیٰ کی میسٹری سے مقابلے کے لیے تیاری۔ کوناسیما کی ترقی پر تلنگانہ کی بری نظر، آندھرا کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان کے ریمارک پر تلنگانہ کے وزراء اور کانگریس لیڈرز برس پڑے، معافی مانگنے کا کیا مطالبہ۔ کویت سے حیدرآباد آنے والی فلائٹ میں بم رکھے جانے کی اطلاع، ممبئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ،
कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं। तलाशी के दौरान सिंगापुर से आए मुसाफिर के पास से 18 ड्रोन जब्त। और फलकनुमा के हुदूद में गांजा का रैकेट बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार। बंडागोड़ा पुलिस ने आदि सारिक को किया गिरफ्तार। मसरूका जेवरात जब्त। और अब पेश खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 7 दिसंबर को वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाएंगे। गांधी भवन में पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस किए जाएंगे, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। यूनिवर्सिटी को आलमी सतह पर तरक्की दी जाएगी। वजीर आला ने कहा कि आलूदगी फैलाने वाली सनतों को आउटर रिंग रोड से बाहर किया जा रहा है। मूसा नदी की सफाई, मेट्रो की तोसी, सनतों की मुंतकिली हुकूमत के अहम मकासिद हैं। हुकूमत तरक्की और फलाह बहबूद की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद 4 एयरपोर्ट्स मंजूर कराए गए। बहरान का शिकार रियासत को तरक्की की तरफ ले जाया जा रहा है। 2034 तक तेलंगाना को 1 ट्रिलियन की मईशत बनाना हमारा मकसद है। सबकी कोशिशों से तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला ने फिर इस बात को दोहराया कि 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाया जाएगा। उन्होंने तमाम ज़िले सुदूर को हिदायत दी कि दिसंबर के आखिर तक तमाम खवातीन को साड़ियाँ फराहम की जाएं। वज़ीर आला ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई को हुकूमत के इंतकाम से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की आज़ादी और आज़ादी के बाद से अब तक इस ख़ानदान ने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। इस अखबार के ज़रिए कौमी शऊर को बेदार किया गया। झूठे और फर्जी इल्ज़ामात के ज़रिए इस ख़ानदान को परेशान करने की वो मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम इस ख़ानदान के साथ खड़े हैं। उन्होंने 1 करोड़ इंद्रमा साड़ियों की तकसीम, 2047 तक 3 खरब डॉलर की मईशत और तेलंगाना राइजिंग विजन की तफसीलात से इजलास को वाकिफ करवाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि पार्टी को रियासत में इख्तिदार पर लाने वाले हर कारकुन के साथ इंसाफ किया जाएगा। गांधी भवन में इजलास से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हर सतह पर कांग्रेस पार्टी कारकुनों के साथ इंसाफ करेगी और ईमानदारी के साथ काम करते हुए अवाम की तवक्कात को पूरा करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बहबूद का नाम कांग्रेस है और रियासत की हमजत तरक्की के लिए मुसलसिल कोशिशें जारी हैं। हुकूमत के पहले साल में ख़वातीन ग्रुपों को 26,000 करोड़ रुपए के कर्ज दिए गए। रियासत में ख़वातीन की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को कोत्तागुड़म में डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि खम्मम ज़िला कांग्रेस के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ज़िले को जिस तरह के फंड्स दरकार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि बिला ताख़ीर इसे जारी करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि खम्मम का कोत्तागुड़म तेलंगाना तहरीक का अहम मरकज़ रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि देहातों में अच्छे लोग सरपंच बनने चाहिए। देहातों में सियासी रकाबत नहीं होनी चाहिए। गाँव में इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए। तेलंगाना को मुल्क में सफ़े अव्वल बनाने के लिए काम करें। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी, वी श्रीहरि, मुत्तहदा खम्मम ज़िले के अरकान मुक़न्नना और ओहदेदार मौजूद थे। फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के सिलसिले में रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने इंतजामात का जायजा लिया है। श्रीधर बाबू और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने समिट के मकाम पर मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर ने शख्सी तौर पर समिट के मुकाम के पास किए जा रहे इंतजामात के सिलसिले में अहदेदारों को हिदायत दी कि 5 दिसंबर तक इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पार्किंग, लॉजिस्टिक्स, मेज़बानी और सफाई के कामों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने 8 और 9 दिसंबर को होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इंतजामात के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए मुताल्लिका अहदेदारों को मौसर इंतजामात की हिदायत दी है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन,
सब्यासाची घोष, संजय कुमार, शीशादरी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मेहमानों को दावतनामे भेज दिए गए हैं। बैरूनी मेहमान भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। प्रजा भवन में वॉर रूम के क़याम की हिदायत दी गई है। 13 दिसंबर तक ये कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में प्रोग्राम होंगे और 13 दिसंबर को उप्पल स्टेडियम में फुटबॉल मैच से इसका इख्तिताम होगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। मेसी के इंडिया टूर में लम्हे आखिर में हैदराबाद को शामिल किया गया है। अर्जेंटाइन के लेजेंड खिलाड़ी 13 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे। हैदराबाद में वो एक मुख्तसर एग्जीबिशन मैच खेलेंगे। रेवंत रेड्डी बाज स्कूली बच्चों के साथ इस एग्जीबिशन मैच में हिस्सा लेंगे। ये मैच RR9 और मेसी 10 के दरमियान खेला जाएगा। रेवंत रेड्डी 9 नंबर की जर्सी पहनेंगे, जबकि मेसी 10 नंबर की रिवायती जर्सी पहनेंगे। तेलंगाना के सीएमओ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि रेवंत रेड्डी प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिट नजर आ रहे हैं। उन्होंने फुटबॉल के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मेसी के शेड्यूल के मुताबिक वो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जाएंगे। वो मुंबई में 14 दिसंबर और दिल्ली में 15 दिसंबर को खेलेंगे। मेसी के इस दौरे को इंडिया टूर 25 का नाम दिया गया है। रियासती हुकूमत दुनिया में तेलंगाना की इमेज को बेहतर बनाने के लिए मेसी के दौरे का इस्तेमाल कर रही है। मेसी 2011 के बाद पहली मर्तबा इंडिया का दौरा कर रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म स्टार अजय देवगन भारत फ्यूचर सिटी में फिल्म सिटी कायम करेंगे। इस सिलसिले में 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना ग्लोबल समिट के दौरान याददाश्ती मुफाहमत पर दस्तखत किए जाएंगे। वाज़ेह है कि अजय देवगन ने कुछ अर्सा कबल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी और इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया था। तेलंगाना के वजीर कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना से मुताल्लिक आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि आंध्रा के नायब वजीर आला पवन कल्याण को फौरी मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने मुआफ़ी नहीं मांगी तो तेलंगाना में उनकी फिल्मों की नुमाइश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेलंगाना की तौहीन रियासत की अवाम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि पवन कल्याण ने कहा था कि तेलंगाना की बुरी नज़र कोनसीमा की तरक्की में रुकावट बन रही है। कोमाटिरेड्डी ने कहा कि पवन कल्याण अभी भी सियासत में आए हैं, उन्हें अपनी रियासत और अवाम के भले के बारे में सोचना चाहिए। गैर ज़रूरी बयानात से उन्हें गुरेज करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के एमपी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि पवन कल्याण किसी दूसरे की स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। ये 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है। पवन कल्याण को ये मुहासिबा करना चाहिए क्योंकि रियासत के मसाइल को किस तरह से हल किया जाए और अवाम को राहत दी जाए। गैर ज़रूरी तेलंगाना के बारे में रिमार्क्स मुनासिब नहीं है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने नेशनल हेराल्ड मामले में ताज़ा FIR को लेकर ईडी और मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत की नाकामियों और खामियों को उठाए जाने के खौफ की वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की गई है। सारा मुल्क राहुल गांधी के साथ खड़ा है और कांग्रेस भी ऐसे हरबों से खौफजदा नहीं होगी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब कभी पार्लियामेंट का इजलास शुरू होता है, तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी की मरकजी हुकूमत इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है। पूनम प्रभाकर ने पवन कल्याण के रिमार्क पर कहा कि नायब वजीर आला होते हुए जिम्मेदारी से गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर कोनासीमा में नारियल के दरख्त सूखे पड़ गए तो इसके लिए तेलंगाना के अवाम जिम्मेदार नहीं है। जब तेलंगाना सैलाब की जद में था, इसे कुदरती आफत कहा गया। हमने नहीं कहा कि आंध्रा की वजह से यह सैलाब आया है। तेलंगाना के साबिक वजीर KT रामाराव ने एक बार फिर कहा है कि लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के जरिए कॉन्फ्रेंस हुकूमत 5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम कर रही है। इस सिलसिले में KTR ने बताया कि 8 फेक फाइंडिंग टीमों की तश्कील दी गई है और ये सनती इलाकों का दौरा करेंगे। BRS लीडर ने अपनी पार्टी के लीडर्स को हिदायत दी है कि वो सनती इलाकों का दौरा करें। इससे पहले भी KT रामाराव ने कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर पॉलिसी के जरिए आराजी स्कैम का इल्जाम लगाया था। BRS पार्टी की टीमें 3 और 4 दिसंबर को सनती इलाकों का दौरा करेंगी। इन टीमों में BRS के सीनियर लीडर्स और साबिक वज़रा भी शामिल रहेंगे।
बीआरएस लीडर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने केसीआर पर तनकीद को अपना धंधा बना लिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला ने खुला झूठ बोला कि बीआरएस के दौर में हुकूमत में कुछ नहीं किया गया। श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया कि क्या केसीआर ने 5 मेडिकल कॉलेज नहीं दिए? क्या केसीआर ने ज़ैर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल नहीं किया? क्या केसीआर ने पालमपुर में 5 नए आबी ज़खायर नहीं बनाए? क्या केसीआर ने धान की पैदावार को 30 लाख टन से 3 करोड़ टन तक नहीं पहुंचाया? श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया कि पालमपुर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट जिसका 10% काम बाकी है क्यों मुकम्मल नहीं किया गया? तेलंगाना राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए थे। तेलंगाना के अलावा बंगाल, केरला, उत्तराखंड और दूसरी रियासतों में भी राजभवन का नाम अब लोक भवन कर दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मंगल को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कुरमागुड़ा डिवीजन के मादानापेट में 1 करोड़ 25 लाख की VDCC आयशा निस्वा मदरसे के पास 27 लाख रुपए के मसारिफ से CC रोड के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। मुकामी अवाम ने बरवक्त मसाइल की यकसुई पर रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे बरकी के ओहदेदारों के हमरा नए सब स्टेशन का मुआयना किया। कौसर मोहिउद्दीन ने ऐसे कॉलोनी करीब अलसबा होटल के अगबी इलाके में नस्ब किए गए 33 kV सब स्टेशन का महकमे बरकी के ओहदेदारों के अर्जुन कुमार, गोवर्धन और जाफर के हमरा दौरा किया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सालार मिल्लत ऑटो स्कीम के तहत फसलांसर ग्राउंड में 10 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा तकसीम किए। ऑटो रिक्शा हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन से इज़हार तशक्कुर किया। मुकामी अफराद ने भी मजलिस की मज़कूरा स्कीम की सताइश की। इस मौके पर हल्के असम्बली नामपल्ली के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। कुल्लन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से आज सालार मिल्लत ऑटो सब्सिडी स्कीम का पहला बैच का आज बेनिफिशरीज़ को ऑटोज़ हैंड ओवर किए गए। आज करीबन 10 ऑटोज़ हमने हैंड ओवर की है बेनिफिशरीज़ को। और ये ऑटोज़ की खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रिकल ऑटोज़ है और इस स्कीम में जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको बग़ैर ज़ीरो डाउन पेमेंट देते हुए ये ऑटो उनको उनके हवाले किया गया। दूसरे जो स्कीम्स आते हैं या हुकूमत की जानिब से भी जो स्कीम आई थी उसमें एक बड़ा 50,000 से ऊपर का डाउन पेमेंट था जो गरीब आवाम के लिए वो भी बहुत बड़ा बोझ था। इसको नज़र में रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सालार मिल्लत ऑटो सब्सिडी स्कीम निकाली है जिसमें ज़ीरो डाउन पेमेंट पे ये ऑटोज़ बेनिफिशरीज़ को दिए जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इससे हर एक वो ऑटो जो चलाते थे, जो ख़ास तौर से किराए पे ऑटो लेके चलाते थे, जो सालों से ऑटो चला रहे थे और उनका ख़ुद का ज़ाती ऑटो नहीं था, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा नौजवानों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली में कई जॉब मेलेस रखाई है जिसमें कई नौजवानों को अच्छे अच्छे कंपनीज़ में रोज़गार मिला है। जब तक हमारे पास एप्लीकेशंस आते रहेंगे ये स्कीम चालू रहेगी, ये स्कीम नहीं रुकेगी। शुक्रिया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के में जारी VDCC बॉक्स ड्रेन के स्लैब का मुआयना किया। उन्होंने रात देर गए दौरा करके मुतालिका कॉरपोरेटर्स के हमरा मज़कूरा तामीराती कामों का मुआयना किया और कामों को तेज़ी से पूरा करने की हिदायत दी। मज़कूरा प्रोजेक्ट 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है जो जहानुमा डिवीज़न में तेगलकुंटा से मोहम्मदिया कॉलोनी तक होगा। इस मौके पर रुकन बलदिया जहानुमा डिवीज़न, मुख्तदर बाबा और मस्तपुरा डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे।
सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जार अहमद बेग ने जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एंड सेक्रेटरी शिवालिंगैया से मुलाकात करके एजेंट्स के मसाइल की एकसुई के लिए नुमाइंदगी की। तफसीलात के मुताबिक आरटीए हुकाम की जानिब से आरटीए के दफ्तर वाक़ खैरताबाद में एजेंट्स के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है, जिस पर एजेंट्स ने सदर मजलिस से इसकी शिकायत की। सदर मजलिस ने इस काम के लिए रुकन कौंसिल मिर्जार अहमद बेग को रवाना किया, जिस पर आरटीए के जॉइंट कमिश्नर शिवालिंगैया ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस मसले की एकसुई के लिए मुतबादिल हल निकालेंगे। वाज़ेह है कि मज़कूरा पाबंदी से सैकड़ों एजेंट्स बेरोजगार हो गए हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम जारी है। मंगल को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने दारुस्सलाम में याकूतपुरा के 40 मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की मालियत 20,58,000 रुपए बताई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में हल्के याकूतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। मुगलपुरा डिवीजन की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने अमान नगर बी में सीसी रोड के कामों का जायजा लिया। कॉरपोरेटर ने कामों की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। उर्दू मस्कन मोती गली में मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी की सेहत के लिए दुआई इज्तिमा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा मुख्तलिफ दीनी मदारिस के तलबा ने कुरान ख़्वानी में हिस्सा लिया। मौलाना आसिफुल्लाह शाह नूरी ने सैयद अहमद पाशा कादरी की सेहत कामिला के लिए खुसूसी दुआ की। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने सैयद अहमद पाशा कादरी की सेहत के लिए अवाम से दुआओं की अपील की है। कुवैत से हैदराबाद आने वाले तैयारे में बम रखे जाने की इत्तला की वजह से तैयारे को मुंबई में लैंड करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट जो कुवैत से हैदराबाद आ रही थी, ईमेल के जरिए इत्तला दी गई। तैयारे को मुंबई में उतारा गया। एयरपोर्ट पर CISF, मुंबई पुलिस और बम स्क्वाड्स की तरफ से तैयारी की तलाशी ली गई, ताहम ये इत्तला झूठी साबित हुई। हालिया चंद दिनों के दौरान हैदराबाद आने वाली परवाजों में बम रखे जाने की इत्तलात मिल चुकी हैं। मुसाफिरीन भी तशवीश देखी जा रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने सिंगापुर से आए मुसाफिर के कब्जे से 18 ड्रोन को जब्त किया है। बताया जाता है कि 9,80,000 रुपए के ड्रोन जब्त किए गए हैं। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। मलकपेट चादरघाट पुल पर सुबह से शाम तक गैर मामूली ट्रैफिक के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक का रुख मोड़े जाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ईस्ट जोन ACP श्रीनिवास और काचीगुड़ा ट्रैफिक CI कौशिक रेड्डी ने गुज़िश्ता रात चादरघाट पुल और इससे मुत्तसिल छोटे पुल का भी मुशाहिदा किया। रिंग महल से आने वाली ट्रैफिक का रुख काचीगुड़े की तरफ मोड़ा जाएगा और कोठी से जाने वाली ट्रैफिक को छोटे पुल चादरघाट की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अतापुर एम्बियंस फोर्ट के पास गैर मजाज तामीरात को बलदिया की तरफ से मुनहदिम कर दिया गया। राजेंद्र नगर DC सुरेंद्र रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि बिना इजाज़त तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि इजाज़त के बगैर किसी भी तरह की तामीरात से गुरेज करें। DCP साउथ जोन किरण खारे की क़यादत में साउथ जोन के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने दरकार दस्तावेजात न होने और बिना नंबर की तकरीबन 80 गाड़ियों बशमूल 2 व्हीलर्स को जब्त किया है। इस तलाशी मुहिम में 110 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। DCP ने बताया कि अवाम में कानून का एतमाद बहाल रखने के लिए तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। DCP ने यह भी कहा कि राउडी शीटर्स पर भी नजर रखी जा रही है। अमन कानून मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बल्लागोड़ा पुलिस ने आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए मसरूका जेवरात जब्त कर लिए। ACP चंद्रायन गुट्टा ने बताया कि 4 केसों में मुलविस शेख सलीम उर्फ सुनील शेट्टी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि सारिक के कब्जे से 10 तोले के तलाई और 10 तोले के चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी सलीम सरखे की वारदातों में मुलविस रहा और PD एक्ट के तहत जेल भी जा चुका है। जेल से आने के बाद वो फिर से सरखे की वारदातें अंजाम देने लगा। पुलिस ने बताया कि फिर से PD एक्ट लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सबको आदाब। आज बंडलागोड़ा पुलिस एक नटोरियस और डेंजरस चोर को पकड़ा। इनका नाम मोहम्मद सलीम अलियास सुनील शेट्टी। इन्हों पकड़ने के बाद इंट्रागेशन करे तो इन्हों 4 केसेस में इन्वॉल्व हुआ। ये 4 केसेस कन्फर्म करा। ये 4 केस में 3 केस बंडलागोड़ा में एरिया में कुबा कॉलोनी
और इस्माइल नगर और मोहम्मद नगर एरिया में और एक बालापुर एरिया में हुआ। ये 4 केसेस में इनको पास से 10 तोला सोना और 10 तोला चांद रिकवरी करा। ये चोर इससे पहले 150 क्राइम घर का तोड़ने के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हुआ। इसके पहले इनका ऊपर 2 बार पीडी एक्ट लगा के जेल को भेजा है और बाद में बाहर आके ऐसा फिर ये क्राइम कर रहा। ये साल में अप्रैल में इनको ये बंडलगोड़ा पुलिस अरेस्ट करके जेल को भेजा है। अगस्त में जेल से बाहर निकलने के बाद ये 4 ऑफेंसेस करा। अभी भी इनको रोकने के लिए हम पीडी एक्ट डालने को प्रपोजल भेजेंगे। पुलिस ने फलकनुमा के हुदूद में गांजे के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि फातिमा नगर में गांजे की फरोख्त की इत्तला मिली थी। मुकामी वाक़े पर पहुंचकर 24 साला शेख इमरान को गिरफ्तार किया गया। घर की तलाशी पर 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। बताया जाता है कि यह गांजा जहांगीर से लेकर कमीशन पर से फरोख्त किया जा रहा था। अरबाज भी गांजे का सारिक बताया गया है। पुलिस इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई कर रही है। शहर के नवाही इलाके हयात नगर में आवारा कुत्तों ने 7 साला बच्चे पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि इस हमले में बच्चे का कान, गाल और आंख के पास गहरे जख्म पाए गए हैं। बताया जाता है कि शिवगंगा कॉलोनी में यह वाकया पेश आया। तकरीबन 10 आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चा जो घर के सामने खेल रहा था इस पर हमला कर दिया। मुकामी अवाम ने इस वाक़े को लेकर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुतालिका हुक्काम ने इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। जड़ीमटला पुलिस स्टेशन हदूद में मुबैना नशे की हालत में खातून की तरफ से रास्ता चलने वालों के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल से हलचल देखी गई। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने खातून को तहवील में लेकर इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। कुछ देर के लिए रोड पर सनसनी देखी गई। तेलंगाना के गदवाल में एक और इकामती स्कूल में समेत ग़िज़ा से 12 बच्चे मुतासिर हुए हैं। बताया गया है कि गवर्नमेंट एसटी हॉस्टल में खाने के बाद बच्चे क़े और दस्त से मुतासिर हुए, जिन्हें फौरी मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों की सेहत अब बेहतर बताई गई है। संतोष नगर पुलिस की तरफ से पॉक्सो के केस में अदालत में पेश किए गए मुलजिम को 6 साल की कैद और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तफसीलात के मुताबिक मोइन बाग के साकिन फजल आलम कैफिक को पॉक्सो केस में गिरफ्तार किया गया था। 12वें एडिशनल सेशन जज टी अनीता ने मुलजिम को सजा सुनाई। मोअज़्ज़िज़ जज ने फैसला में कहा कि अगर मुलजिम 10,000 रुपये जुर्माना अदा नहीं करता है तो कैद की सजा में 3 माह की तौसी की जाएगी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है
वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तमाम की कोशिशों से तेलंगाना को तरक्की की राह पर ले जाया जा रहा है। मूसा नदी की सफाई, मेट्रो की तोसी हुकूमत के अहम मकासद। आलमी सतह पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी को तरक्की दी जाएगी, वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। जारिया माह की 8 और 9 दिसंबर को फ्यूचर सिटी में होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इंतजामात के लिए सरगर्मियां जारी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने किया समिट के मुकाम का मुआयना। वजीर आला की मेसी से मुकाबले के लिए तैयारी। कोनासीमा की तरक्की पर तेलंगाना की बुरी नजर। आंध्रा के नायब वजीर आला पवन कल्याण के रिमार्क पर तेलंगाना के वज़रा और कांग्रेस लीडर्स बरस पड़े। माफी मांगने का किया मुतालबा। कुवैत से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट में बम रखे जाने की तल्ला। मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं। तलाशी के दौरान सिंगापुर से आए मुसाफिर के पास से 18 ड्रोन जब्त। और फलकनुमा के हुदूद में गांजे का रैकेट बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार। बंडलागुड़ा पुलिस ने आदि सारिक को किया गिरफ्तार। मसरूखा जेवरात जब्त। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर आज इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।